Hi students. So we are 22 people now. I shall start now. Uh, Sorry for the delay for 2-3 minutes. I was over a call with Sunil sir. I hope I am audible to everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great. So if I see your syllabus, until last week we have completed the first module, right? So I just want to give you the overview about the certain things which we have discussed last week among the faculty and the HODs. How we will be proceeding with the classes and other things is that you guys will be required to submit one assignment for each module. If I talk about financial management, your subject, the syllabus, the entire syllabus is divided among 4 modules. 4 modules में divided है, जो 4 units हम इनको consider कर लेते हैं. तो I would want each one of you would be submitting the assignment on either of the topic from one unit, from each unit. So there will be in total 4 assignments. I would want you guys to write the assignment. It should be handwritten. It would not be that you would be copying and pasting it from somewhere. I would also want that you should make your assignments on your own by not copying from each other's assignment. और 4 असाइनमेंट आपको मुझे सबमिट करने होंगे
how do you want me to give it to you? Should I give you the freedom to choose the topic on your own, या फिर आप मुझे चाहते हैं कि मैं आपको questions दूं और आप उसमें से assignment करेंगे? I can make both the, I can give you the choices whatever you want. If you want to choose the topic on your own, you can do it. तो जैसे फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया है, तो उसमें मेजरली थ्री टू फोर टॉपिक्स आर बीइंग कवर्ड. ओके, तो उनमें से कोई भी आप एक टॉपिक चूज करके यू कैन पुट द, यू कैन मेक योर असाइनमेंट रेडी एंड सबमिट इट टू मी. यू हैव टू स्कैन द दैट असाइनमेंट ऑफ योर्स once you are done with that, and you have to email me that handwritten copy of your assignment. You have to email me. So in the chat column right now, I'm going to drop my email address to you guys. Please have a copy of that right away. Just note that down. और अदरवाइज अगर रह जाएगा किसी के पास या नहीं होगा मेरा ईमेल आईडी, तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं. My ID would be this. I have sent to everyone. Can you see that in the chat inbox? That is only Ifat. Ifat is my name. You just put only before that, and @protonmail.com. That would be my email ID. You have to share your assignments on this email ID to me. Once you're done, you can also text me or WhatsApp me that you have done it. Okay, your internal marks and everything would be depending upon that. I will let you know कि कितना mark per assignment I will be giving you, and that I will be sharing with you in a document. So just advise me how you want me to do that. Shall I give you the questions for all the units, and you can choose either of the topic and give it to me, or you would want to choose it on your own? Tell me. आप लोग कैसे करना चाहते हैं असाइनमेंट्स? मैं आपको क्वेश्चंस दे दूं मॉड्यूल वाइज, आप उसमें से क्वेश्चन चूज कर लीजिएगा और कोई भी अपना टॉपिक जो आप चाहते हैं जिस पर असाइनमेंट सबमिट करना वो आप कर दीजिएगा. शैल वी डू इट दिस वे? एम आई ऑडिबल? मैम, if क्वेश्चंस दोगे तो वो ज्यादा सही रहेगा. हाँ बताइए. अगर आप क्वेश्चंस दोगे हाँ, तो वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें भी पता चल जाएगा कि मतलब अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस टाइप से आएंगे. टॉपिक वाइज तो हम कर लेंगे चाहे तो, बट इट वुड बी बेटर कि अगर हम क्वेश्चन वाइज करें तो हमारे क्वेश्चन प्रिपेयर होते जाएंगे वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस. और आप अगर क्वेश्चन दोगे तो वो पूरे मॉड्यूल में से दोगे तो दैट वुड बी बेटर. ठीक है. सो व्हाट आई विल डू इज, क्योंकि आप लोगों के पास एकदम से बर्डन नहीं आ जाए चारों यूनिट्स का, तो जो जो यूनिट हमारी कंप्लीट होती जाएगी मैं आपको उस यूनिट के लिए असाइनमेंट देती जाऊंगी. अभी हमारा फर्स्ट यूनिट इज कंप्लीटेड. ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट से जितने भी प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑल द यूनिट आई मीन यूनिवर्सिटी किस तरीके से क्वेश्चन सेट करेगी वो उनके ऊपर है, बट फिर भी जो भी प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं फर्स्ट यूनिट के, वो 3-4 क्वेश्चंस मैं आज ड्राफ्ट करके आप लोगों को वो मैं भेज देती हूँ. आप मुझे इस वीक में वो फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा बाय फ्राइडे ऑल्सो. विल दैट बी एनफ? मतलब 4-5 days वुड बी एनफ फॉर वन असाइनमेंट. सेकेंड मॉड्यूल in this particular week we will be covering mostly second module. I will try to cover second module, complete second module in this week if we will be quick enough. तो इसमें जैसे कंप्लीट हो जाएगा इस वीक में सेकंड मॉड्यूल हमारा, तो आप इसमें से फिर मैं आपको क्वेश्चन बाय फ्राइडे दे दूंगी, तो या मंडे, नेक्स्ट मंडे, तो आप नेक्स्ट वीक सेकंड अपना असाइनमेंट कर सकते हैं सेकंड मॉड्यूल से. इस तरीके से हम चल सकते हैं मॉड्यूल वाइज. Is that okay? I am Pandey can be the book you can refer. आपके सिलेबस में वैसे नीचे रेफरेंसेस में सभी बुक्स दी हुई हैं. Otherwise you can search on net also. Everything is given on the internet these days. You just have to choose the, you have to make the right choices of the word. जब आप सर्च कर रहे हैं कुछ भी गूगल पे, तो आप जो भी टाइप कर रहे हैं आप वो देखिए कि आप वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड टाइप कर रहे हैं, तो आपको कंटेंट जो मिलेगा नेट पे वो आपको बहुत है इंटरनेट पे कंटेंट, जितना आप चाहोगे मिल जाएगा. आप वैसे भी बना सकते हो, वहां से भी लेकर बना सकते हो, बट आई वुड वांट यू टू मेक इट. जस्ट अ मोमेंट, मुझे लगता है शायद किसी स्टूडेंट का कॉल आ रहा है. गिव मी अ मिनट. हेलो, यस. ओके, आई एम सॉरी. ठीक है, तो इस तरीके से असाइनमेंट का हम पैटर्न रखेंगे मॉड्यूल वाइज. आई विल ट्राई टू कवर 1 unit in 1 week.
किसी को इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ लगता है कि आपको और कुछ इनपुट देना है तो मुझे अभी बता सकते हैं आप लोग, हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी सिलेबस का स्क्रीन शेयर कर रही हूँ फॉर नाउ, so that you can see what exactly is the syllabus and what topic I'm going to cover today. You can see that also. So here, this is the syllabus, this Excel, if you can see. ठीक है, तो मॉड्यूल 1 आपको दिख रहा है, ये भी हम लोगों ने ये कवर कर लिया है फर्स्ट मॉड्यूल। इसमें जो भी क्वेश्चंस बन पाएंगे 1 2 3 4 व्हाटएवर क्वेश्चंस, आई वुड बी एबल टू गिव इट टू यू एंड देन यू कैन मेक द असाइनमेंट्स अकॉर्डिंगली। फर्स्ट यूनिट में किसी को कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बता सकते हैं। Time value of money we have discussed, objectives we have discussed, functions of the financial manager we have discussed, sources of long term finance, ये हमने last topic cover किया था, which is the last topic of the module 1. ठीक है, next topic of the first topic of module 2 is investment decisions, importance and difficulties. कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हम लेते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। ठीक है, so I'm going to cover this topic today, investment decisions, importance and difficulties. Okay, so in short, or if I will tell you the overview basically of this topic, या समरी अगर मैं आपको बताऊं इस टॉपिक का कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स या हमारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है उनका इंपॉर्टेंस और डिफिकल्टीज क्या हैं, तो ये तीन टॉपिक हैं basically which we will be covering in this. The 3 points basically are there under the importance, and then there are 3 points which are under the difficulties. What can you see on my screen now? आप लोग को क्या दिख रहा है अभी स्क्रीन पर? मैम कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, Capital investments, importance and difficulties. Okay, great. So during the last topics also we have covered these things, that long-term sources of finance and all those things we have already covered. So if I go with the importance, the first point under the importance is long-term effects. If you can see long-term effects. Long-term effects means that whenever we are making any investment, because generally whatever investments decision we take in our routine life of business, those particular investment decisions are made for the long term. We generally would want to procure, हम जहाँ से भी funds procure करने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि वो जो sources हैं वो long term finance के सोर्सेज हो, सो दैट हमें शॉर्ट टर्म में या किसी भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमको वो रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़े और लॉन्ग टर्म तक हमारे पास पैसा रहे और हम उसको यूज कर सकें अपने बिजनेस में और रिटर्न्स अर्न कर सकें। तो पहला इंपॉर्टेंस इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या हो जाता है कि हर चीज का इसका हमारे ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो लॉन्ग टर्म पे ही पड़ेगा। अगर हमने इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को उतना सीरियसली नहीं लेकर डिसीजन मेक किया है कोई भी, लाइक प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स या कुछ भी, और अगर वो
एट लॉस है तो हम लोग लॉस में ही चले जाएंगे फॉर लॉन्ग टर्म। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हमने कोई भी लॉन्ग टर्म सोर्स से हमने फाइनेंस लिया है तो हम उसको रिटर्न करने के लिए भी तो लॉन्ग टर्म तक हमें पैसा रखना पड़ेगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल हमने उसको हायर रेट ऑफ रिटर्न, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर हमने प्रोक्योर किया किसी बैंक से या समथिंग, और एक फिक्स्ड टाइम के लिए भी हमने कर लिया है, या हमने कुछ शेयर्स जो हमने लास्ट टाइम इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस किया था, अगर हमने कोई शेयर इस तरीके से लॉन्ग टर्म टाइम के लिए, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने इशू कर दिए हैं और उनका हमने डिविडेंड रेट बहुत हाई रख दिया है, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हमने पढ़ा था कि उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, या डिबेंचर्स हमने कुछ इशू कर दिए हैं जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमने इशू कर दिए हैं मार्केट में, और हमारे पास बिजनेस में उनको फंड्स को यूज करने का, यूटिलाइज करने का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है इतना इफेक्टिव कि हम उसकी कॉस्ट को भी निकाल पाए। हमें प्रॉफिट भी अर्न करना है, व्हाइल वी आर देयर इन द बिजनेस वी आर सिटिंग टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न इनकम एंड एवरीथिंग। और हमने अगर कोई भी प्रोक्योर करा है फंड जो भी किसी भी ऐसे सोर्स से जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्ट है उसको रीपे करना, या उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो वो लॉन्ग टर्म तक हमें हैम्पर करती रहेगी, लॉन्ग टर्म तक हमें लॉस देती रहेगी, और हम उसको रीपे भी नहीं कर सकते अगर वो किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए हमने इशू करा लिया है कि 10 इयर्स के लिए हमने कुछ पैसा अगर इंटरेस्ट पर उठा लिया है तो हमें 10 साल तक वो पैसा रिटर्न भी नहीं कर सकते और इंटरेस्ट भी हमको देना पड़ेगा। तो हमें बहुत ही कॉशियसली, इसीलिए इम्पोर्टेंस है इस चीज का, फर्स्ट इम्पोर्टेंस यही है कि जो भी इफेक्ट होता है इसका वो लॉन्ग टर्म रहता है। तो अगर हमने बहुत रैशनली बहुत सब कुछ एनालिसिस करने के बाद ये डिसीजन लिया है कि हमने जो भी सोर्सेज से फंड्स लिए हैं अगर वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कम से कम इंटरेस्ट रेट पर हमने उठाया है, या कम से कम रेट ऑफ डिविडेंड हमें देना पड़ेगा, या हमने इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं जिसमें कि हमें कोई फिक्स्ड है ही नहीं लायबिलिटी कि हमें देना है डिविडेंड। इक्विटी में जैसे मैंने आपको बताया था कि जरूरत नहीं है, अगर कंपनी चाहती है, उसके पास लॉसेज हैं और नहीं चाहती है देना डिविडेंड, तो जरूरी नहीं है कि इक्विटी शेयर्स को वो डिविडेंड देगी। तो ये डिसीजन अगर हमने बहुत अच्छा ले लिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो हमें अगर उसका इम्पैक्ट अच्छा होने वाला है, बेनिफिशियल है, तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। सो वी शुड बी रेडी फॉर बोथ द थिंग्स, इसीलिए हमको कॉशियसली डिसीजन लेना है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज दिस दैट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देता है, इसीलिए हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत ही रैशनली, बहुत ही एनालिसिस करने के बाद लेने चाहिए। इरिवर्सिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया, रिवर्स करना मुश्किल है जो हमने डिसीजन लिया, क्योंकि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ रहा है हर चीज का, तो हम उसको शॉर्ट टर्म में खत्म करने की कोशिश करें वो नहीं हो सकता, चाहे लॉस ही हमें हो रहा हो तो फिर हमें लॉस बेयर करना ही पड़ेगा। तो इरिवर्सिबिलिटी है, इसका इंपॉर्टेंस ये भी है कि इरिवर्सिबिलिटी है। तो इम्पोर्टेंस हमारे लिए पॉजिटिव मैनर में कब आएगा, जब हमें प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं। अगर प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं तो फिर इरिवर्सिबिलिटी है कि हम उस प्रॉफिट को भी कम नहीं कर सकते हैं, वी आर एबल टू एक्चुअली अर्न द प्रॉफिट फॉर द लॉन्ग टर्म, जब तक कि हमारे पास वो पैसा है हमें रिटर्न करना ही नहीं लॉन्ग टर्म में, 10 साल 15 साल 20 साल जितने भी फिक्स टाइम पीरियड है, हमसे कोई वो पैसा रिटर्न वापस मांगेगा नहीं। या इक्विटी शेयर्स का जैसा पैसा है तो वो तो फिर हमसे वाइंड अप तक भी कोई नहीं मांगेगा, until whatever time you are working या we are running the organization, it will run that। ठीक है। सब्सटैंशियल वर्ड क्या होता है, इम्पोर्टेंट, सब्सटैंशियल आउटलेज, whatever for we have actually procured the funds। हमारा जो मेन काम करने का जो मेन हमारा मोटो है, वट एवर इट इज, कैन बी प्रोडक्शन, कैन बी सर्विस देना, या हम किसी बनाकर मैन्युफैक्चरिंग करके किसी प्रोडक्ट के वो बेच रहे हैं, तो क्या आउटले है हमारा, वो इम्पोर्टेंट आउटले को भी डिफाइन करता है। दिस आल्सो बिकम्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंस फॉर आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हमें डिफिकल्टीज क्या आती हैं कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फॉर एग्जांपल यू बीइंग द फाइनेंशियल मैनेजर, आपको अगर फाइनेंस मैनेजर बना दिया जाए कंपनी का और आपको बोला जाए कि हमें 10 करोड़ रुपीस ऑफ द फंड्स चाहिए टू स्टार्ट अ बिजनेस, व्हाट विल यू डू? देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे प्रॉब्लम आएगी, मुझे 10 करोड़ रुपया मुझे कौन देगा, कहाँ से मिलेगा, व्हाट ऑल विल बी द ऑप्शंस फॉर मी, और दे भी देगा अगर कोई तो उसका कॉस्ट मुझे क्या देना पड़ेगा, कोई फ्री में तो पैसा अपना वैसे भी नहीं देगा, क्योंकि अदरवाइज वो आपको देगा तो उससे अच्छा वो कहीं और अर्न करेगा, या तो आपसे वो कुछ अर्न करे तभी आपको पैसा देगा, राइट। इन टुडेज टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोक्योर मनी, क्योंकि पैसे की कॉस्ट है,
पैसे की कॉस्ट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि whatever cost we have for any amount of money today, we will not have the same amount of purchasing power of the same amount in future. 4 साल 5 साल बाद वो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है एंड इट डजंट रिमेन सेम। तो हमें वो सारा कुछ एनालिसिस भी करना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी करना है, कॉस्ट ऑफ फंड भी हमें देखना है। वो सब आ जाता है हमारा डिफिकल्टीज में, कि डिफिकल्टीज आर बेसिकली दी प्रॉब्लम्स के, हमें प्रॉब्लम्स कहाँ बताएंगे। मेजरमेंट प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम क्या आएगा, मेजरमेंट प्रॉब्लम। अगर हमें कोई अमाउंट ऑफ फंड दे भी दिया है कैपिटल के लिए, रेज करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, मेजरमेंट प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। ये भी फाइनेंस मैनेजर को मेजरमेंट करना है कि हमें 10 करोड़ ऑफ कैपिटल आज तो चाहिए, क्या 10 इयर्स के बाद भी 10 करोड़ का वैल्यू वही रहेगा, हमें 10 करोड़ ही चाहिए रहेगा 5 ईयर के बाद भी, या हमें 5 साल के बाद फिर से कहीं और से कुछ और पैसा लेना पड़ेगा इन ऑर्डर to bring our capital equivalent to 10 crores of rupees today। जो वैल्यू आज 10 करोड़ का है, क्या 5 साल बाद सेम रहेगा, या हमें और 1 करोड़ के बाद 10 लाख रुपए और लेना पड़ेगा 5 साल के बाद, या 10 साल बाद हो सकता है 20 लाख रुपए और उठाना पड़े मार्केट से, इन ऑर्डर टू ब्रिंग दी value of that money equivalent in that time what it is equivalent today as 1 crore rupees or whatever 10 crore जो भी हम अपना कैपिटल। तो मेजरमेंट प्रॉब्लम एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम मेजर कैसे करें कि हमें कितना पैसा चाहिए किसके लिए। अब उसके लिए आपको पूरा डिटेल में बिजनेस प्लान भी पढ़ना पड़ेगा, पहले बनाना पड़ेगा कि क्या हमारा बिजनेस प्लान है, हम करना क्या चाहते हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चाहिए रहेगा, मशीनरीज चाहिए रहेंगी, रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, मैन पावर कितना चाहिए रहेगा, उनकी क्या कॉस्ट रहेगी, हर चीज का हमें बजटिंग करना पड़ता है। बजटिंग के ठीक है, हमें मैन पावर रखनी है, 10 लोग रखने हैं, 10,000 लोग रखने हैं, व्हाटएवर पीपल वुड बी देयर, उनका कितना कॉस्ट होगा, एक आदमी की कॉस्ट 2 लाख रुपए का पर्सन रखेंगे, 10 लाख का पर्सन रखेंगे, इनटू हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल वुड बी देयर, टोटल कॉस्ट वुड बी, मैन पावर का एक साल में इतना कॉस्ट आएगा, अदर थिंग्स का इतना कॉस्ट आएगा, कॉम्प्लायंसेस का इतना कॉस्ट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का इतना कॉस्ट आएगा, लैंड प्रोक्योरमेंट, सो मेनी देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस। वो सबको हमें मेजर करना पड़ता है। कुछ चीजें हम छोड़ तो नहीं रहे हैं जब हम मेजर कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें थोड़ा सा और मार्जिन लेकर अपना कैपिटल को रखना चाहिए। लेकिन मार्जिन हम कितना लें, ज्यादा मार्जिन लेकर उठा लिया अगर हमने कैपिटल, तो हमें इंटरेस्ट भी देना है, वो भी देखना है हमें कि, तो मेजरमेंट प्रॉब्लम बिकम्स द फर्स्ट डिफिकल्टी कि हम कैसे मेजर करें ये सब चीजें। अनसर्टेनिटी क्या होता है, फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। हम बहुत सारी चीजें प्लान करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल मैं आपको अभी पेंडेमिक का अगर मैं दूं, हर बिजनेस ने अपना कुछ एक प्लानिंग करके रखा होगा 2020 के लिए कि हमारा 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमारे ये प्लान है, हम ये प्रोड्यूस करेंगे, या हम ये सर्विस नहीं लाएंगे, या हम ये एक्सपेंड करेंगे, कुछ भी ऐसा एक प्लान करा होगा जरूर। लेकिन किसी ने भी ये कोरोना हो जाएगा, ये पेंडेमिक आ जाएगा, इसका प्लान नहीं करा होगा। So this is uncertainty। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी, जिसका हमें पता ही नहीं है। अगर 2020 की प्लानिंग 19 में की गई होगी या और 2 साल पहले की गई होगी, तो किसी को इस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि 2020 में क्या होने वाला है। तो आज हम अगर 2020 में बैठे हैं और अब हमें नेक्स्ट ईयर्स की प्लानिंग करनी है, तो हमें नहीं पता कि 2025 में क्या हो जाएगा। कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा जो इस टाइम हुआ है 2020 में, या इससे ज्यादा कुछ मेजर सिचुएशन तो नहीं हो जाएगी। उसको आप कैसे मेजर करोगे, हम कर ही नहीं सकते हैं। सो दिस आल्सो बिकम्स वन ऑफ द अनसर्टेनिटी पावर्स। जैसे आप देखो कुछ स्टेट्स में नेचुरल कैलामिटी की वजह से पूरी की पूरी स्टेट खत्म हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, या कई बार कभी साइक्लोन के बीच में एक बार बहुत पहले आ गया था। ये सारी चीजें होती है जो हम मेजर नहीं करते, जो हम कंसिडर भी नहीं करते, अपना प्लान में हम डाल भी नहीं सकते। इसका कॉस्ट भी नहीं डाल सकते कि आप कॉस्ट डाल सकते हो कि कितना लॉस हो गया होगा पिछले 6 महीनों में कंपनीज को, कि 6 महीने से कोई काम ही नहीं हुआ, नोबडी हैज गॉन टू ऑफिस, नो प्रोडक्शन हैज बीन डन। अब तो थोड़ा ठीक है, स्टार्ट होने लगा है काम, बट फॉर 4-5 months it was totally zero। कुछ प्रोडक्शन हुआ तो क्या लॉस हुआ, उस लॉस को क्या कोई मेजर कर सकता था 2 साल पहले या लास्ट ईयर? नो। सो दिस आल्सो बिकम्स वन ऑफ द डिफिकल्टी इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ठीक है, टेम्पोरल स्प्रेड होता है। टेम्परेरी हम कुछ भी चीज अगर सोचते हैं कि हमें ये काम करना है, इट कैन बी फॉर 1 month, 2 months, 3 months का हम टाइम लेके सोचते हैं। कोई भी छोटा बड़ा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ चीजें हम टेम्परेरी बेसिस पे भी लाते हैं कि हमें
शायद इस ईयर में हमें प्रोडक्शन अगर ज्यादा करनी है तो हमें थोड़ा मैन पावर टेम्परेरी कुछ मैन पावर शायद ज्यादा रखना पड़े। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे फिर हम रखते हैं लोगों को, ठीक है हमें 1 साल के लिए लोगों को जॉब पर रखना है, होता है ना एट टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स भी होती हैं कि कंपनी हायर करती है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि हमें इतनी मैन पावर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शायद 10 साल का कोई प्रोजेक्ट है, पहले 2 साल में हमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करवानी है, तो हम लोगों को शायद हम 100 लोगों को हायर कर लें, लेकिन आगे आने वाले टाइम में शायद हमको 100 की जगह 80 ही चाहिए। तो हम इस टाइम में क्या करेंगे, हम टेम्पररी बेसिस पे 20 लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखेंगे, क्योंकि हमें उनको लॉन्ग टर्म नहीं चलाना है। तो फिर उनका जॉब आगे कंटिन्यू रहेगा, सो दैट दोस 20 पीपल आर नोइंग कि ठीक है मैं हमारा जॉब 22 इयर्स का ही कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल के बाद हम वी विल ऑब्वियसली हैव टू लीव दिस जॉब और व्हाटएवर। सो आल्सो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट कि कैसे हम करेंगे, हाउ टू मेजर दैट ऑल्सो कि हमें उसको कितने टाइम के लिए रखना है। क्या हमने 2 साल के लिए रखा है वो ठीक है, या उसको हमें 2.5 इयर्स करना है या 1.5 ईयर करना है, व्हाट दोस आर डिफिकल्टीज। इन्वेस्टमेंट्स जो है हमारी, ये हम टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जैसे हम पहले भी कंसीडर कर चुके हैं, बट जस्ट टू गिव यू द ओवरव्यू एंड टू गिव यू मोर कंटेंट, जितना ज्यादा से ज्यादा आप समरी वाइज भी नॉलेज अगर रखें तो आपको थोड़ा बहुत सब कुछ पता हो, सो दैट यू कैन पुट वेरेवर व्हेनेवर इट इज नीडेड इन द आंसर क्वेश्चन जो भी आपको पूछा जा रहा है। अगर ऑब्वियसली विल गेट लॉन्ग क्वेश्चंस, जितना ज्यादा कंटेंट आपके पास होगा, पॉइंट्स जितने ज्यादा होंगे आप उनको एलैबोरेट करके लिख सकते हैं, सो दैट यू कैन हैव। सो आई हैव जस्ट पुट दिस आल्सो, although types of investment is not very much related in this topic, but क्योंकि इम्पोर्टेंस और डिफिकल्टीज हमें डिटेल में बताना है, बट इफ यू नो व्हाट आर द टाइप्स, वो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, हम कई बार क्या होता है मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट होती है, अगर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, तो ये सारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आ गए हैं एक तरीके से। मैंडेटरी क्या होता है, मैंडेटरी का मतलब है नेसेसरी कि करना ही है, कंपल्सरी। मैंडेटरी मींस कंपल्सरी कि हमें कंपल्सरी काम करना ही करना है। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, ये भी फाइनेंशियल मैनेजर का बहुत स्मार्ट डिसीजन होता है। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट्स फॉर एग्जांपल उसको ये टाइम टू टाइम भी एनालिसिस करना, अगर उसके पास टाइम होता है और या फिर वो कॉस्ट सेविंग करने की कोशिश करता है, तो ये देखना कि जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी हमने ले चुके हैं, हमने इन्वेस्टमेंट तो कर चुके हैं हम ऑलरेडी, और हम मार्केट से पैसा भी उठा चुके हैं और अपने बिजनेस में भी हम लगा चुके हैं, बट हम ये देखना कि कुछ पैसा जो हमारा बिल्कुल डेड हो चुका है, जहाँ से हमें रिटर्न्स जो आने चाहिए तो उतना रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, और मार्केट में हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम उसको यहाँ से पैसा हटा के किसी दूसरी जगह पर लगा दें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिविजुअल लाइफ की बात करूँ, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आई हैव पुट सम मनी इन फिक्स्ड डिपॉजिट, आई एम गेटिंग अ रिटर्न ऑफ से 5% पर एनम, लेकिन मेरे पास अभी एक न्यू प्लान किसी और कंपनी ने म्यूचुअल फंड कुछ मार्केट में जो है वो डाला, जिसमें कि वो 5 की जगह 8% रिटर्न दे रहे हैं। तो क्या मेरे लिए फिजिबल है कि वो 5% वाला जो इन्वेस्टमेंट है उसको पैसा अपना निकाल के रिप्लेस करके इन्वेस्टमेंट ज्यादा वाले अमाउंट में डाल सकूं, जहाँ से मुझे जो इंटरेस्ट है या रिटर्न्स हैं उस पर वो ज्यादा रेट से मिलें? दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की जो लो परफॉर्मिंग एसेट्स है हमारे पास, या लो परफॉर्मिंग लो रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको हम रिप्लेस करके हायर से करेंगे। भी एक इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंशन इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स जब हम कोई नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं या नया प्रोजेक्ट नहीं भी ला रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ही हम एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट्स, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंड्स रेज, जो सोर्सेज डिफरेंट सोर्सेज हैं, उसमें डाइवर्सिफाई करते हैं इन्वेस्टमेंट्स को, कि एक जगह पर हम ना रखें सब कुछ अपना, एक जगह पर नहीं रखें। लाइक जैसे होता है बोलते सेइंग दैट वी शुड नॉट पुट ऑल आवर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि हमारी जो भी टोटल इनकम है उसको एक जगह इन्वेस्ट ना करें। एक जगह इन्वेस्ट करके अगर वहां पर हमें लॉस होगा तो एंटायरली लॉस हो जाएगा। सो डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट करें, छोटा छोटा हर चीज में इन्वेस्टमेंट करें हम, ताकि अगर कोई कहीं पर हमें लो रिटर्न्स मिल रहे हैं तो कहीं पर ज्यादा भी मिलेंगे, ठीक है। R&D इन्वेस्टमेंट्स कई बार कंपनीज क्या करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वो ऑलवेज दे वुड वांट कि वो कुछ ऐसा रिसर्च एंड डेवलप करते रहें, जिससे कि न्यू या तो मशीनरीज इंस्टॉल कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का जो प्रोसेस है वो किसी भी डेवलपमेंट को ला के इंस्टॉल करके क्या टाइम उसका प्रोडक्शन का कम होगा, हमारा कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करने से, कोई नई मशीनरी लाने से, क्या हम ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे,
मैनुअली हमारे पास शायद वो काम कम ज़्यादा टाइम में कम हो रहा है, हो सकता है कुछ इंस्टॉलमेंट करने से, कुछ हमें न्यू आइडियाज लेके आने से या मार्केट से कुछ भी R&D कर, तो कई कंपनीज R&D पर भी अपना बहुत पैसा इन्वेस्ट करती हैं, अपनी R&D की टीम उनके पास इन हाउस रहती है जिनका यही काम रहता है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देते हैं, हर प्रोसेस को स्टडी करते हैं, माइन्यूटली चेक करते हैं कि इस प्रोसेस में कौन सा ऐसा स्टेप है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हटा सकते हैं क्या, ये काम होने की जरूरत है नहीं है, या कुछ और इंस्टॉल करने की जरूरत है, नया प्रोसेस लाने की जरूरत है, नई मशीनरीज लाने की जरूरत है, या नई एक्सपर्टीज के लोग लाने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल कोई एक आदमी 10 साल से काम कर रहा है, वो अपने आप को पॉलिश ही नहीं कर रहा, अपनी स्किल्स नहीं बढ़ा रहा, 10 साल पुराने वाले प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। आज मार्केट में हमारे पास नए स्टूडेंट्स हैं जो मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी पर काम कर सकते हैं, क्या हम उनको लेकर आए? देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स। तो हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है? ठीक है, मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट अभी अगर जो भी बच गई इन पांचों में से, वो सब में से कहीं पर भी टाइम टू टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज मिसलेनियस। जस्ट कैपिटल बजटिंग इज आल्सो रिलेटेड टू इट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, मॉड्यूल 2 जो हमारा है, यूनिट 2 जो है उसका मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। कैपिटल बजटिंग का भी इसमें एक टॉपिक बहुत बड़ा है। जब हम कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं कि हमें कौन सी सोर्स ऑफ कैपिटल पे कितना ज्यादा किस रेशो में हमें उसको डिराइव करना है, तो हमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। पहले हम प्लान करेंगे, फिर और प्रॉपर मार्केट स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर जाकर हम सिलेक्शन करेंगे, फिर फाइनेंसिंग प्रॉपर होगा कि ठीक है फंड्स रेज हुआ एंड ऑल दैट, एंड देन later on implementation is basically the thing that when whatever we are doing basically, जो हमने बजट किया था हम अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एज पर आवर प्लान। इम्प्लीमेंट होना मतलब प्रैक्टिकली जो हमने प्लान बनाया था, पेपर पे जो हमने प्लान बनाया था उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना इज इम्प्लीमेंटेशन। एंड वी कैन ऑलवेज रिव्यू करने का मतलब है कि अगर हमें लगता है किसी भी पॉइंट पे लगता है कि रिव्यू करने से हमने जो हमने बजटिंग किया था वो वहाँ पर कुछ बजटिंग ठीक नहीं हुआ, रिव्यू करने के बाद हमें कुछ बेनिफिट लगता है कि हमें इसको चेंज करने से ये बेनिफिट होगा, या कोई चीज को हमें एलिमिनेट करना है, तो रिव्यू करके वी विल अगेन प्लान विद अ न्यू प्लान एंड फॉलो दिस प्रोसेस अगेन। लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जो हमने फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस मैनेजर भी पढ़ा था कि उसके पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, कैपिटल बजटिंग है और बहुत सारी चीजें हैं। ये है लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। हमारे पास जो भी स्टाफ होता है ना, वो डिवाइडेड होता है अमंग दी लेवल्स। लोअर लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया। टॉप लेवल मैनेजमेंट सीईओज आ गए, वीपीज आ गए, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी, जो कॉलेज है उसको एक ऑर्गेनाइजेशन लें, तो हमारे पास जो एक जस्ट होल्ड ऑन। तो जैसे हमारे कॉलेज में भी देयर इज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, द ओनर ऑफ द कॉलेज, देन देयर कैन बी वाइस चांसलर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिपेंड्स कि हमें कौन सा, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मतलब जिसको बोलते हैं डेजिग्नेशंस तो होते हैं, बट दे आर डिफाइंड कि हमारे यहाँ पर ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और लो लेवल मैनेजमेंट। लो लेवल मैनेजमेंट बेसिकली जो स्टार्ट होते हैं एज अ फ्रेशर एग्जीक्यूटिव्स एंड देन सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑल दैट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स या असिस्टेंट मैनेजर्स, इस लेवल के लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। फिर टॉप लेवल में आगे ये सब जो भी जीएम्स एंड अबव हो जाते हैं, जीएम्स, वीपीज एंड ओनर्स, सीईओज, सीएफओज एंड ऑल दैट। तो लेवल्स, हर लेवल पे अपना एक डिसीजन मेकिंग पावर होता है। पावर मींस अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी भी रहती है हर लेवल के हिसाब से। आपने देखा होगा कोई छोटा पर्सन जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे है, जो एक लो लेवल मैनेजमेंट में आता है, उसके पास उतनी ही पावर्स होंगी जितना उसको काम करने दिया जाएगा। ही कैन नॉट मेक एनी मेजर डिसीजंस द वे अ टॉप लेवल मैनेजमेंट पर्सन कैन डू। हर चीज़ के लिए हमें अप्रूवल चाहिए होता है अपनी सीनियर अथॉरिटी से, जो हमारा काम कर रही है बेसिकली, जिनको हमारी रिपोर्टिंग एटनेंस होता है कि हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे इमीडिएट बिल्कुल सुपरवाइजर हैं, उनसे हम पूछ के ही काम कर रहे हैं अगर हम एक लो लेवल पर हैं। और कुछ पावर्स हैं जो उन्हीं के पास है, जब तक हमें उनसे रिटर्न में अप्रूवल नहीं मिलेगा वी कैन नॉट प्रोसीड। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो हमारे लेवल पर वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ही नहीं है।
ठीक है। डिसीजन कहाँ पर लिया जाता है? लोअर लेवल पे, मिडिल लेवल पे और टॉप लेवल पे। हाउ स्ट्रक्चर्ड इज डिसीजन? रूटीन, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। या इसको इस तरीके से चाहें तो डायग्राम को बना सकते हैं। व्हेन एवर यू विल बी आस्क्ड द क्वेश्चन रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग और एनीथिंग यू वांट टू पुट इन द डिसीजन मेकिंग थ्रू लेवल्स, लेवल वाइज के आप उसको दिखा सकते हैं, लो, मिडिल और टॉप में डिवाइड करके। ठीक है, you want to put all these things, it is fine. You want to put 2 points out of it, it is also fine, because this is not exactly the topic we are covering today for this. So मैं इसको थोड़ा elaborate इसलिए नहीं कर रही हूँ because this is not the topic to be covered for today class. This is just the overview. ओके, एनालिसिस जो हमने बोला था कि इम्पोर्टेंस में और डिफिकल्टीज में हम जो बोल रहे थे कि एनालिसिस में डिफिकल्टी में कहा था ना कि हमें मेजरमेंट डिफिकल्टीज, एनालिसिस हमें करना होता है मार्केट का। तो ये एनालिसिस, टाइप्स ऑफ एनालिसिस में कौन कौन से एनालिसिस एज अ फाइनेंशियल मैनेजर या एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमें करने पड़ते हैं। मार्केट एनालिसिस, पोटेंशियल मार्केट, मार्केट शेयर। मार्केट एनालिसिस का क्या मतलब होता है? अगर मैं किसी भी मतलब मार्केट इन द सेंस कि व्हाट बिजनेस वी आर डूइंग, पहले तो हमें देखेंगे कि हमारा क्या बिजनेस है। आर वी इनटू प्रोडक्शन बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, या हम कोई सर्विस दे रहे हैं। तो हमें पता है हमारा प्रोडक्ट ये है। अब उस प्रोडक्ट को बनाने वाले और मार्केट में कितने लोग हैं, मार्केट में कितने लोग हैं, हमारे कंपेटिटर्स कौन है। पोटेंशियल मार्केट मतलब हमारे कंज्यूमर्स कौन है, कौन कौन से पोटेंशियल लोग हैं जो हमारा प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रोडक्ट लेते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट लेते हैं, हम जैसे मैंने मर्सिडीज का एग्जांपल लेते हैं, हमें लग्जरी कार है, तो क्या मर्सिडीज, उसके लिए पोटेंशियल मार्केट कौन होगा? द पीपल हु आर अर्निंग एटलीस्ट 1 crore पर मंथ और मे बी मोर देन दैट। उनके लिए पोटेंशियल मार्केट वो लोग नहीं होंगे जो 10,000 20,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। दे विल नेवर बी एबल टू बाय देयर प्रोडक्ट। सो वी एज अ बिजनेसमैन, एज अ फाइनेंशियल पर्सन शुड बी नोइंग what is our potential market, कौन हमारे potential consumers हैं भी, because we always would consider the people who have the purchasing power to buy our product या service जो भी हम कर रहे हैं, वो अगर हमारे खरीद सकने की उनका पावर है तभी वो हमारे कस्टमर्स हैं। अदरवाइज जस्ट बिकॉज दे वांट टू बाय समथिंग, दे आर नॉट आवर कस्टमर्स। Everybody obviously would want to own a Mercedes, but can we consider everybody our potential consumer? No, because they don't have the purchasing power. तो market analysis हमको ये करना पड़ता है। और Mercedes whenever they are producing a car with certain qualities या कुछ वो हमें features दे रहे हैं कार में, 10 features suppose they are providing us or whatever, they also have to consider कि market में जो उनके competitors हैं वो उस feature को किस particular value में दे रहे हैं, किस particular वैल्यू इन द सेंस कि क्या प्राइस वो कोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ द बायर वुड गेट द सेम फीचर इन सम अदर कंपेटिटिव प्रोडक्ट कॉल्ड BMW, प्रोडक्ट इन द सेंस की ब्रांड, तो वो BMW खरीदेगा, व्हाई वी वुड गो फॉर द Mercedes एट अ हायर कॉस्ट। सो वी हैव टू कंसीडर व्हेन आई से मार्केट एनालिसिस हैज टू बी डन फॉर द कस्टमर्स, फॉर द कंपेटिटर्स, everything. Got it? Technical, these are all the kinds of analysis which we have to do before putting in our money in any project of ours, depending upon our business कि हम क्या काम कर रहे हैं। It can be only a product, it can be a service also, कि हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम सिर्फ सर्विस ही बेच रहे हैं। सर्विस बेच रहे हैं, हम AC का रिपेयरिंग का सर्विस का काम है हमारा, हम AC की सर्विस करते हैं। So we're not selling any product. Right? I will have to take this particular topic next class से मुझे कल से लेना होगा ये यहाँ से, because time has left very less. It is only just 1 minute for the class to over. I have to capture the attendance. I have just discussed about the assignments today, no? So it took some time for that. So what I will do, I will just share with you guys the topic for this particular assignment so that you can start it by today or tomorrow for the module 1. और हम इस चीज़ को आगे कंसिडर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, यहीं से हम कल डिस्कस करते हैं आगे। एंड आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस क्लिक फॉर नाउ। किसी को कुछ क्वेश्चंस अभी तक हैं तो वो आप अभी में हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, बाकी हम कल करेंगे। So 29 people have attended this class.
Any questions until now? I'm done from my side until this topic, and I will take this PPT in next class from here itself, from the analysis PPT. Okay? Thank you.